علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا فلا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وفہما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن بے حد شکر و احسان یم رب ذوالجلالن اس یت مستعار زندگی مز بی اکہ ساتن یت بابرکت مجلس میں شریک سپدن توفیق عنایت کور۔ حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام برذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت۔ پتمس درسس مز پڑے اسہ رضاعتس متعلق احکام، یتھ مز ساروی کھت اہم حکم یہ اوس کہ اخ موج ہیکہ أکس بچس زیادہ کھت زیادہ 2 ورین تامت دودھ چانائت، اور قرآن کی روح سے 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ دینا یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ ام پتہ آزچ آیات یم زن یمن مز بی متعلقہ عورت یم زن یعنی تم خواتین یمن زن طلاق آسہ گومت تہند کینہ ضمنی احکامات بی آمت بیان کرنے، اور یم آیات بالکل آسان سمجھن خاطر، اس لیے بہ کر یمن صرف لفظی ترجم انشاءاللہ المستعان یتن کیا معمولی ضرورت پی تتن کرو اس امچ وضاحت تو اس کرو کوشش کہ یم احکام یم زن آز طلاقس متعلق آمت دن ان کو ہم آج کے درس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ مر جائیں آپ میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، یعنی تمن خواتین ہند احکام بیان کرنے یہند خاندار گزرن، کیونکہ طلاق سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور انتقال کرنے سے یا وفات کرنے سے خاوند کے اس سے بھی ایک عورت جو ہے یہ بن شوہر کے رہ جاتی ہے، امچ نویت لگ بھگ کمچ طلاق چی ہش نویت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماون تم لوگ یم تہ مز گزرن اور پات کن ترائن خانداری، یعنی وہ عورتیں جن کے مرد یا جن کے شوہر انتقال کر جائیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماون یتربصن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی تم خانداری یا تم خواتین یمن خاندار گزرے، بہرحال اللہ تعالیٰ ونن تم تھین پنن پان رکائت، کیا تھین رکائت یعنی نکاح سے وہ اپنے آپ کو باز رکھے۔ کتنے ٹائم کے لیے؟ 4 اشہر، 4 مہینوں کے لیے، وعشرہ، اور پھر 10 دن، یعنی یمس خاتون خاوند گزرے
तमिस खतर अल्लाह तबारक व तआला यमे आयत मुताबिक इद्दत थोमुत 4 रेत तो 10 दो, यानी 4 महीने और 10 दिन उसकी इद्दत होगी। अलबत्ता अगर ये खातून हामिला हो तो उसके बारे में सूरह तलाक में आया है कि इसकी इद्दत उस वक्त 4 महीने 10 दिन नहीं होगी, बल्कि तम सातन आस वज़े हमलस तान, योतान ये बच्चा जब तक नहीं जनेगी तब तक इसकी इद्दत रहेगी। बहरहाल ये आमुत इतनस वन कि वो लोग या वो औरतें जिनके मर्द इंतकाल कर जाए, जिनके शौहर इंतकाल कर जाए, वो अपने आप को रोके रखें, यानी निकाह से रोके रखें 4 महीने और 10 दिन। यम 4 रेत 10 दो तमिस खातून खतर इद्दत यमिस खानदार फोत गस। अलबत्ता अगर यह हामिला न तेल, अगर हामिला तब भी इसकी इद्दत कौन सी होगी, यह जन अमिस वज़े हमल तामत। और ये भी याद रखे वज़े हमल अगर अमिस यह अल्लाह ताला सुंद यह कानून कि बच्चा कम अज कम माँ के पेट में कितने टाइम के लिए रहता है, 9 महीने। अगर अमिस गोडनुक रेत और पहले ही महीने में शौहर इंतकाल कर जाए तो इसकी इद्दत यह वो बहुत लंबी हो जाएगी, सही लगभग कुता रेत 9 रेत। मगर शरीयत के लिहाज से यह इद्दत 1 मिनट की भी हो सकती है। कैसे? मिसाल के तौर पर अकिस खानदारी गो शौहर इंतकाल, यह स्रान पच पे उसी वक्त वहां से वहां ये खानदारी वो बच्चे को जनती है, तो जैसे ही वो बच्चे को जनेगी उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। वो अमिस खातून खतर कुछ इद्दत रोज ज्यादा को ज्यादा 8 घंटे 8 मिनट यूता, मतलब वो इससे पता चला कि इद्दत जो हामिला होगी उसके लिए इद्दत बच्चा जनने तक इद्दत है, चाहे वो 9 महीने हो, चाहे वो 2 महीने हो, यूता टाइम आ, चाहे वो 1 ही घंटा ही क्यों ना हो। अलबत्ता आम हालात में यस न हामिला आस के उसके लिए कुरान कहता है कि उनकी इद्दत कितनी है, 4 महीने 10 दिन। यम 4 रेत 10 दो यम जन यह अमिस खातून शरीयतन दितमुत, एक तो ये इद्दत गुजारेगी ताकि यह जन नो इन वोल नस्ल आया बच्चे उसकी नस्ल महफूज रहे, उसका तो हमने पढ़ा है। दयम शरीयतन यह थोमुत अमिस खातून ये इसका सोग का वक्त भी है, यानी अपने गुजरे हुए जो शौहर है उसके मातम में ये अपने आप को घर में रोक के रखेगी 4 महीने 10। बल्कि हदीस तल पता लगन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्निस हदीस में इरशाद फरमाउत कि यथ गरस मज अमसुन खानदार रोजन आस, वो तो उसी का घर है, तो वहां से वो इन 4 महीने 10 दिन में बाहर भी नहीं निकल सकती है बगैर जरूरत के। यानी यह नीरित यह सोग पन्निस अमिस शौहर के इंतकाल के गम में। और दमिस हदीस में आमुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी औरत जिसका खावत इंतकाल कर गया था उसे यह दवाई के तौर पर सुरमा लगाने से भी एहतियात बरतने को कहा। यानी यूचा अमिच क्या आमच ममानियत कि अत मज गि खातून न कह बना सिंगार कर, न वो शौक किस्म के कपड़े पहने, न वो कोई अत क्या वन कह बना सिंगार या कह मेकअप, किसी की इजाजत इन 4 महीने और 10 दिनों में, और अगर वो हामिला हो तो बराबर इद्दत में, उसे इन चीजों की इजाजत नहीं है। अम पे अल्लाह ताला फरमान फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना, पास जब ये अपनी इद्दत को मुकम्मल करे, कुमन ये बयान यमन शौहर इंतकाल करे, तो अल्लाह ताला फरमान फ़इज़ा बलगना, पास अगर इनके ये जब ये अपनी इस इद्दत को मुकम्मल करें, फला जुनाह अलैकुम, तो इन पर कोई गुनाह नहीं है, फीमा फअलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, कि ये अपने आप के बारे में कोई फैसला करें मगर बिल मारूफ शरीयत के मुताबिक। यानी इससे क्या मुराद है, यानी अब इन औरतों पर कोई गुनाह नहीं है इद्दत गुजारने के बाद कि ये अपनी जिंदगी के बारे में खुद से फैसला करें। फैसला किसके बारे में करना है, चाहे नया निकाह करना चाहे तो कर सकते हैं, चाहे बेनिकाही रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, चाहे अपनी मर्जी का निकाह किसी जगह करना चाहते हैं, दशव इख्तियार आए इस खातून दिन। तो यहाँ पर यह भी एक अजीम एहसान है जो इस्लाम ने औरतों पर किया। ब्रोट बाकी मजहब वहां जब किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता था, बहरहाल या तो उसे सती की रस्म के भेंट चढ़ जाना पड़ता था, या तो इसी किसी कोठरी में बंद करके वहीं पर इसको मरने के लिए तड़पते हुए छोड़ा जाता था। मगर इस्लामन कोर ये सोरी खत्म यम बिदआत और यम जन खराब रसूमात, और यहाँ पर कहा गया कि ये सोग का जो महीन ये टाइम
4 महीने 10 दिन ये गुजारने के बाद ऐसी औरत को अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा पूरा इख्तियार है, पूरा इख्तियार। फला जुनाह, ऐसी औरतों पर कोई गुनाह नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला करे। यानी फैसला क्या करना है कि ये कहीं पर शादी भी कर सकते हैं अपनी मर्जी की। और आमतौर पर सानिस समाजस मज ये बहुत ही अगर खानदार गुजरे फिर अगर वो दोबारा निकाह की बात कहे, सानिस माशरस में यह गाली जैसी ये समझी जाती है, ये कर भी निकाह, अमिस से ओत्र गुजरे कुछ खानदार, मगर शरीयत कहती है फला जुना, इन पर कोई भी गुनाह नहीं है इस इद्दत के वक्त को मुकम्मल करने के बाद। और दूसरी बात दयम का, अगर कोई औरत बिल्कुल बिन बियाही के रहना चाहती है, सच में व्यसन पान पान किस पर गुजारूं, विडो हुई व्यसन रोजन, तो अल्लाह ताला कहता है कि इनको अपने बारे में इख्तियार है कि ये अपना फैसला खुद ले सकती हैं। चाहे तो निकाह करें, चाहे तो कैसे रहे, चाहे तो ये बिना निकाह के भी रह सकते हैं। और दयम का आम तौर पर सानिस समाजस मज अगर कंसी खातून खानदार गुजरे, पहले तो उसको नई शादी करने की इजाजत ही नहीं देते हैं, ये मायूब समझन सानिस समाजस मज। अब अगर कहीं से दीनदार का सोसाइटी आस, वो अगर कहेंगे भी इसको निकाह करना, मगर दबाव से था अब आप अपने देवर के साथ करो निकाह, किसके साथ आम तौर पर, यानी वह अगर कर निकाह कर खानदार सिंदिस बॉयस से, मगर अल्लाह ताला फरमान ऐसी कोई कैद नहीं है, ये अपना फैसला खुद कर सकते हैं, जहां इनकी मर्जी हो ये निकाह कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करना चाहती है निकाह तो उसकी भी इनको पूरी पूरी इजाजत है। मगर अल्लाह ताला फरमान बिल मारूफ, मगर ये दोनों काम कहाँ कैसे होने चाहिए, शरीयत के हुदूद में रहकर। ये नहीं कि ये 4 महीने 10 दिन गुजारने के बाद किसी गैर मर्द के साथ भाग जाए, ये भी आदि शरीयत में इजाजत दितमुत कि आपको अपना फैसला करने की खुद इजाजत है ना। अल्लाह ताला फरमान बिल मारूफ, शरीयत के हुदूद में रहकर इसको ये फैसला करना होगा। अगर ये वैसन निकाह कर तो शरीयत के बनाए गए उसूल के मुताबिक निकाह करेगी, अगर ये इसी तरह रहना चाहती है निकाह के बगैर तो इसे अपनी इस्मत और अपनी जो पाक दामनी उसको भी बरकरार रखना होगा। अल्लाह ताला फरमान वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह खूब बाखबर है। यानी यहाँ दोनों से कहा जाता है, एक तो इस लड़की के खानदान वालों से कहा जाता है कि जो कुछ तुम इस औरत के साथ करोगे उससे खूब अल्लाह वाकिफ, यानी आप बेजा इस पर दबाव मत बनाओगे कि फलानी से शादी करनी है, या बेजा इस पर दबाव बनाओगे कि हाई अब हमारी गैरत का मामला है आपको शादी नहीं करनी है, तो उनसे भी कहा जा रहा है कि अल्लाह आपके अमाल से खूब वाकिफ है। और इस लड़की या इस औरत से भी कहा जाता है कि कुंजे जोड़ नो यारान, या मैं अब फोन पर या किसी और जरिए से अब मैं नया रिश्ता खुद से जोड़ दूंगी। अल्लाह ताला फरमान इन दोनों से अल्लाह तबारक व तआला खूब बाखबर है। अल्लाह ताला फरमान अच्छा वल्लाहु वला जुनाह अलैकुम। अच्छा एक बात और दयम का आत्मस वन ब्याख फिqhi मसला, वो तो यहाँ कुरान में जिक्र नहीं है, अलबत्ता हदीस से उसका पता चलता है। अगर कोई ऐसी औरत हो जिसकी शादी हो गई हो, निकाह हो गया हो, मगर अभी अपने खावत के साथ खलवत नहीं हुई हो, खावत के साथ खलवत, तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि अगर उसे तलाक हो जाए तो उस पर कोई इद्दत नहीं है, तमिस पर इद्दत कोई, और वो जब चाहे उसी वक्त चाहे नया निकाह करना चाहे तो वो निकाह कर सकती है। और ये पोड़ कि अगर तमिस खावत तलाक दी वो तलाक रजी नहीं होगी, वो तलाक बाइन होगी, ये तो हमने पढ़ा। अलबत्ता इसी से एक मसला फुकाहा ने निकाला है, उससे हदीस से दलील मिलती है कि अगर का खातून आयस जिसका निकाह हो चुका है मगर अभी रुखसती नहीं हुई है, या अपनी मर्द या अपने खावत के साथ अभी उनकी खलवत नहीं हुए, प्राइवेट ताल्लुकात गई कायम, अब इसी असना में वो उसका खावत इंतकाल कर जाए, सो क्या कैसे इंतकाल, अब याद रखिए इस सूरत में इस औरत को इद्दत गुजारनी होगी, बाज़ाब्ते इद्दत गुजारी 4 महीने, अगरचे इसे बिल्कुल खलवत नहीं हुई है। ये क्यों गुजारनी पड़ेगी, उलमा ने ये इसलिए क्योंकि असल में तो वो उसका खावत था, शौहर था, तो इस सोग को इस गम को मनाने के लिए इसे कितनी टाइम की इद्दत गुजारनी होगी, 4 महीने। यानी उमर दौर है कि ना ये बना सिंगार करे, ना तो ये खुशबू का इस्तेमाल कर सकती है, ना तो ये बेजा अपने घर से निकल सकती है। दयम का बहुत ही अहम बात सूरह निसा से भी इसका पता चलता है और अहादीस से भी पता चलता है, अगर ऐसी औरत
या जर ये खातून जिसकी अभी रुखसती नहीं हुई है या अपने खावत के साथ प्राइवेट ताल्लुकात या खलवत नहीं हुई है, मगर इससे पहले ही खावत का इंतकाल हो गया, तो इद्दत तो गुजारनी होगी। दईम इनाम अमिस पे ब्याह ये बाज़ाब्ता उनकी वरासत में बाज़ाब्ता इसको हिस्सा मिलेगा। युस अमिस खानदार तम सज वरासत मज मिले अमिस क्या हिस्सा, क्योंकि अब ये हिस्सेदार बनेगी क्योंकि इसकी बीवी है शरीयत के लिहाज से। अच्छा, ये तो जिम्नन याद याद क्योंकि ये इसके साथ है कि यमिस अगर खानदार गुजरेमुत आस। अब अल्लाह ताला फरमाता है वला जुनाह अलैकुम फीमा अरज़तुम बिही मिन खितबतिन निसा। अब इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि आप इन औरतों के साथ इशारा कनाया में आप उनको निकाह का पैगाम दो। यानी असल में इस आयत का मतलब क्या है, ये जीठ आयत, मैं इसको आप दोबारा नहीं पढ़ूंगा टाइम बचाने के लिए। दईमिस आयतस मुझ आमुद हुकुम करने अरबस मुझ दस्तूर, अरब में एक दस्तूर था कि वहां जब कोई औरत उसका खावत इंतकाल कर जाता था या उसे तलाक हो जाती थी, 3 तलाक हो जाए या तलाके बाइन हो जाए, बहरहाल वो क्या करते थे, वहां रिवाज था एक से ज्यादा निकाह करने का, ताकि उस आखक इंसान थावन कज वो तो 4-4 5-5 भी, बल्कि इस्लाम से पहले वो 10-10 बीवियां भी रखते, वो तो वहां कल्चर था रिवाजों से अरबस में। अब जो ही कहीं कोई औरत उसका खावत इंतकाल कर गया या उसे तलाक हो गई, अब चूंकि हर कोई 10-10 बीवियां 15-15 बीवियां 6-6 बीवियां रखता था, औरतों की क्या थी कमी, मर्द शश, तो जो ही इंतकाल कर जाता था किसी का खावत या तलाक हो जाती थी किसी औरत को, ये फौरन उसे निकाह का पैगाम भेजते थे कि ऐसा चीजें दिवन के पैगाम, ताकि ये हमारी जौजियत में आ जाए और हमें बीवी मिल जाए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने इस रस्म को, अत बुरी रस्म को, क्योंकि अभी तो कल ही इसका खामद इंतकाल कर गया है या रात ही तलाक लोगमत, तो इस बिदत को, इस रस्म को मिटाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक हुक्म नाजिल किया। वो हुक्म इस आयत में है कि जब किसी औरत का खामद फोत हो जाए या किसी औरत को 3 तलाक लग जाए, यानी सगे हराम के मिस खतर पन्निस खानदार, या तो इंतकाल हो गया इसके खामद का या इसके ये मिस क्या था एमिस लड़की लोग तलाक, अब तलाक ये मुगल्लज़ा या भाई, तो अब शरीयत ने कहा जब तक कि ये इद्दत नहीं गुजारेगी, यो ताकि इद्दत मुकम्मल करे, जो इसकी इद्दत होगी चाहे वाज़े हमल हो या 4 महीने 10, तब तक कोई भी शख्स इसे बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में निकाह का पैगाम नहीं दे सकता है। ये कर शरीयतन पाबंदी, यानी अख इंसान या अख मर्द हकने अमिस वन निकुक पैगाम दित कत हालतस मज अत इद्दत के दौरान के, बल्कि हदीस से पता चलता है कि इद्दत के दौरान अगर निकाह किया जाएगा किसी औरत के साथ, वो निकाह बातिल है, सुचन सही निकाह। क्यों? क्योंकि इस आयत ने बताया वला जुनाह अलैकुम, आप पर कोई हर्ज, कोई गुनाह नहीं है, फीमा इसमें अरज तुम भी मिन खितबतिन निसा, कि आप औरतों को इशारे और कनायों में निकाह का पैगाम। हाँ, अलबत्ता शरीयत ने एक छूट दी, वो छूट क्या है कि ऐसी औरत को आप इशारों और कनायों में निकाह का पैगाम दे सकते हैं, मगर वाज़ेह अल्फाजन में, और इसकी तालीम हदीस से भी मिलती है। हदीस में आमद कि बुखारी में है ये और मुस्लिम में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अल्फाज कहने की इजाजत दी है, जैसे किसी औरत का मर्द या उसका शौहर इंतकाल कर गया या उसे 3 तलाकें पड़ गई, अब वो इद्दत गुजार रही है, इद्दत में अगर उसके पास कोई मर्द आए और कहे मुझे एक नेक बीवी या नेक औरत की जरूरत थी, मुझे निकाह करना है, मगर इसे तो उसे इशारा मिल गया मगर वाज़ेह पैगाम नहीं है, तो ऐसे पैगाम देने की शरीयत ने इजाजत दी है, मगर वाज़ेह और साफ अल्फाज में ब्रोट क्या मालूम कि क्या आप मेरे साथ निकाह करोगी या मैं आपको निकाह का पैगाम देता हूं, इसकी शरीयत ने इजाजत नहीं। आज क्या वजह है? इसकी यही वजह है, एक तो ये मातम में है या ये तो एक सोग में है, क्योंकि शरीयत अमुक एहतमाम था कि यूथ संग दिल और यूथ गशन रिश्तन में बेताल्लुकी कि कल ही मर्द इंतकाल कर गए और सुबह ये नए जिंदगी बसर करने का प्रोग्राम बनाए। दयम और दूसरी बात ये भी है कि हदीस में आमद एक सहाबिया थी, एक औरत थी, उसका नाम था हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर ने उनको तलाकें दे दी, 3 तलाकें दे दी, यानी सगे भाई क्या पन्निस मर्दस पे क्या गई हराम, तो ये इद्दत गुजार रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा कि इद्दत गुजारने के बाद मुझसे मिलना, वो ये भी एक इशारा था कि इद्दत गुजारने के बाद आप मेरे से मिलना, मुझे क्या मैं समझे, बहरहाल यदि इद्दत गई मुकम्मल
तो बहुत से लोगों ने पैगाम दिया इस हजरत फातिमा बिनते कैस को, किसका, निकाह का, मगर यमो को सारी इनकार और इन्होंने कहा कि मैं सच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पैगाम दितमुत कि आप इद्दत गुजारने के बाद मुझसे मिलना। बहरहाल यमो तशरीफ कमिन निश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह ने इन्हें कहा कि आप मेरे मुंह बोले बेटे यम जन तम साथ हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मंगते हेतमित, हालांकि फिर तो उसकी भी तफसील है। उनके बेटे थे हजरत उसामा, उनका नाम आपने सुना है, ये वही उसामा है जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जिस दिन रसूलुल्लाह सोजतम सिपा सालार बने, हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके मातहत थे। युश मकाम कम सुन, हजरत उसाम गुलाम थे ज़ैद रज़ी अल्लाह के बेटे। तो रसूलुल्लाह वोन फातिमा बिनते कैसस दबस च कर निकाह केमिस सत, अमिस मेरे मुंह बोले बेटे के बेटे हजरत उसामा। तो फिर उनका निकाह हो गया हजरत उसामा से। तो इन अहादी से पता चलता है कि अगर न साफ तो बैन अल्फाज कुरान करमित हराम, अलबत्ता इशारों कनायु में अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इजाजत दी है। अच्छा, अब इसकी इजाजत क्यों दी गई है, इसकी भी वजह यह है कि कामा पछताए पत हाय मैं ऐसे निको पैगाम ब्रोट दितमुत, क्योंकि वहां तो जल्दी करते थे वो कि मेरी ही निकाह में ये आए। अल्लाह ताला फरमान वलाकिन ला तुआइदुहुन्ना सिर्रन, चोरी छिपे या इशारात में आप इनको ये कह सकते हो अन तकुलु कौलन मारूफा, हाँ भली बात कहना, मगर भली बात यानी अच्छे अंदाज से। वला तअज़िमु उक़दतन निकाह, हरगिज उनको निकाह का उक़द बांधने नहीं देना इस इद्दत में, यानी निकाह की उक़द जो है या निकाह कारून या निकाह की लेन देन कर, ये आप इस इद्दत के दौरान नहीं कर सकते हैं। हत्ता यबलुगल किताब अजला, जब तक कि ये अपनी अजल को यानी जब तक कि अपनी इद्दत को जो इन पर लिखी गई है उसको मुकम्मल न। बहरहाल इद्दत उसके बारे में आया कि इद्दत गुज़श्त वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहदरू, अल्लाह ताला फरमाता वअलमू खूब जान लो, इन अन्नल्लाह यअलमु अल्लाह खूब जानता है मा फी अनफुसिकुम जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, यानी आपके दिलों में जो राय गन रही है केमिस राय इस तरह गन केमिस मुतलिक अमिस खातून मुतलिक अल्लाह खूब जानता है इसको। ये थोड़ी तो फिलहाल पन्ने दिलन में, हाँ ज्यादा से ज्यादा इशारों और कनायु में आप इसकी पेशरफ्त कर सकते हो, इससे आगे फहज़रू, इससे आगे बचो। अल्लाह ताला फरमाता है एम ब्रोट ने किया वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम, जान लो अल्लाह तबारक व तआला खूब बख्शने वाला और बुरुदबार है। बख्शने वाला किसका है कि अगर इससे पहले इस मामले में आपसे कोताहियां हुई हैं कि आपने इद्दत के दौरान ही किसी औरत को पैगाम दिया है, बहरहाल नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अन्नल्लाह गफूर, अल्लाह गफूर है, अगर कोई गलती इससे पहले हुई है तो आप इसकी तलाफी और इसकी माफी अल्लाह से मांगो। गफूर हलीम, मगर अल्लाह ताला फरमान सूचरी मैं तहम्मुल मिजाज और बुरुदबार भी हूँ, यानी ये फैसला जो ये हुक्म मैंने सादिर किया है ये यूं ही सादिर नहीं किया है, बल्कि इसमें भी हिकमतें और इसमें भी अल्लाह का हिल्म और तदब्बुर, वो बाज़ाब्ता अल्लाह के हिल्म और तदब्बुर के मुताबिक ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के लिए दिया है। अम पछ अल्लाह तबारक व तआला बी के अहकाम बयान करन तमन लुकन मुतलिक यम जन अमली ऐसी ही खवातीन जिनको तलाक हुई हो मगर जिनके साथ अभी खलवत नहीं हुई हो। बहरहाल तमन हिंद अहकाम क्या छे, वो अहकाम हम इंशाअल्लाह रहमान कल के दरस में पढ़ेंगे। अलबत्ता आखिरी का ये जो भी इद्दत का जो हमने पढ़ा 4 महीने 10 दिन, कहीं हमने पढ़ा 3 कुरू यानी 3 हेज, कहीं हमने पढ़ा कि हम वाज़े हमल तो वाज़े है, मगर बाकी युस 4 महीने 10 दिन 3 महीने या कुछ साथ 2.5 महीने, ये सब तादाद या ये सब मकदार ये कमरी महीने होंगे, ये कम महीने, क्योंकि पढ़ यसअलूनका अनिल अहिल्ला, इसकी ये रबत है कि यम आयात ये इसी हिसाब से इसमें फिट होती है कि यम सारी इद्दत विद्दत ये सब कुछ इनका हिसाब होगा किसके जरिए से, चांद के हिसाब से। बहरहाल रब्बुल आलमीन मगो दुआ कि सीधी नसीमन आयातन पर अमल करने तौफीक, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।